हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस लाइव पे जो है डीलिंग विद अनसर्टेनिटी इन दिस टफ टाइम्स। मई, ये जो हमारा मई महीना है इसको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस महीना कहा जाता है, जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जिसको हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं वो है हमारी मेंटल हेल्थ। हम उसके बारे में कुछ सीखेंगे, जानेंगे और उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए मई महीने को काफी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं इन द मंथ ऑफ मई। सो उसी को ध्यान में रखते हुए और ये करंट सिनेरियो जिसमें हम सब हैं उसको ध्यान में रखते हुए पहल पीडियाट्रिक थेरेपी सेंटर ने हमें लाइव लेके आए हैं कि ये जो करंट सिनेरियो है जिसमें इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा, वैक्सीन कब आएगी, हमको कब मिलेगी, बच्चों को जब बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन हो रहा है कोविड का तो वो उसका क्या होगा, उनके लिए वैक्सीन कब आएंगी, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम होती जा रही हैं, हमारे फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे, हमारे एल्डर्स का क्या होगा, ऐसे कितने सारे, कोविड कब खत्म होगा, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में मुझे लगता है लास्ट 2 साल से ऑलमोस्ट चल रहे हैं और जिसका आंसर किसी के पास नहीं है, जिसकी वजह से देयर आर हाई चांसेस कि हम सब में थोड़ी बहुत एंजाइटी, फियर, इरिटेबिलिटी ऑफ मूड, ये सब हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं और इसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं जिससे हम प्रैक्टिकली इससे डील कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी दो ऐसे एक्सपर्ट्स को जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ एंड आई लव द वर्क दैट दे डू। दैट इज व्हाई आई हैव देम एज गेस्ट ऑन माय प्लेटफॉर्म। So I would first like to welcome Dr. Swagata Dasgupta. She has a PhD in psychology. She is trained in various modalities like cognitive therapies, ISP, NLP, and mindfulness. She is certified as a special educator as well. वो एक काउंसलर इंचार्ज है इन अ लीडिंग स्कूल इन थाने सिटी. She is co-founder of Depth Counseling and Remediation Center. She is also a visiting faculty in Cogito Counseling Center, and she is also a consultant in Meraki Therapy Center. She is also a host of TED Circle. So she's got multiple feathers in her cap, and I cannot be more honored than have her on my platform. So let's welcome Dr. Swagata Dasgupta. Thank you. Thank you so much, Kinjal, for the beautiful introduction. I hope I am audible and visible. Yes, ma'am, you are. It's an honor to have you with us today. Thank you so much. Thank you. Thank you, Kinjal. It's an honor to be here. Thanks for inviting. Thank you, ma'am. Okay, now I would like to invite another expert on the panel. Her name is Miss Sushma Palan. She's a wellness coach and a parenting guide and a special educator. Also a faculty in a leading school as a special educator in Thane, and she's been working there since a decade. She is certified as a special educator and has a master's degree in psychology. She is trained in ISP, NLP, and various other modalities of healing and empowerment. She also runs her own center by the name Depth Counseling and Remediation Center, which is co-founded by both our experts today, Dr. Swagata and Sushma Palan ma'am. Both of them, I would also like to mention, have got a rich experience of 20 plus years. So we can't wait to hear from their mouth what are those hands-on practical strategies that we can, implement in these tough times. So let's welcome Ms. Sushma Palan. Hi. Thank you so much. Am I audible and visible both? Hello, ma'am. Hi. Thank you so much for inviting. Am I audible and visible both? Yes, yes. Yes. Okay. 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 Sushma ma'am, there's a little lag. Yeah. Now it's better. Now it's better? Okay. Okay. Swagata ma'am, do we have you? I think there's a little lag again there. Yes. Yeah, I'm there. We both are here. Yeah. Good. Okay. Yeah. So again, Okay. I would like to welcome both of you with a very, very warm heart. And again, I'll repeat myself that I'm honored to have both of you here with such a rich, so many years of experience that you both have. We can't wait to hear you.
on the topic dealing with uncertainty in this tough times. So the stage is yours, ma'am. Thank you. Thank you, Kinjal. Okay. So we will start with one role play Yes. where I'm coming Okay. to Swagata as a parent and she is a counselor. Okay, and let's see how it goes. Yes. Okay. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Good evening, Sushma. How are you? हाँ मैम, वैसा तो सब ठीक है, लेकिन कुछ चीजें बोलनी थी आपसे. बोलिए ना, प्लीज बोलिए. मुझे ना आजकल ऐसा बहुत ऐसा धक 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 बहुत होता है. मेरा ऐसा ना हार्ट बीट बढ़ जाता है. डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और ज्यादा सोच मत, ज्यादा टेंशन मत लो. बट मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है. ऐसा लगता है सांस अटक जाएगी ऐसे गले में. और ऐसा पेट में भी ना ऐसा कुछ सुनती हूँ ना, जैसे कोरोना का या और किसी का, तो मैं ना ऐसा लगता है जैसे चूहे, ऐसे कुछ बटरफ्लाईज या चूहे कुछ तो हो रहा है. कभी कभी मुझे छाती भी मेरा भारी लगता है. ओके ओके. मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या कोई बीमारी हो गई है या मुझे कोरोना हो गया है, या फिर मुझे नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या हो जाता है. ऐसे है ना, मुझे ऐसे लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. फिर कभी कभी पसीना भी हो जाता है, कभी कभी पसीना भी हो जाता है. और तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही नहीं हूँ, मैं ही नहीं हूँ, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस होता है. और देखो मैडम, आपको मैं आज के टाइम पे चिंता तो मेरे को क्या, सभी को है. अभी कोरोना अकेला थोड़ी मेरे लिए है, सभी के लिए पूरे वर्ल्ड में कोरोना है. तो अभी कब इससे बाहर निकलेंगे. मेरा बेटा भी थोड़ा स्पेशल नीड्स के साथ है. मालूम है मुझे. फिर वो इसका मैं कैसे फ्यूचर करूंगी अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे कोरोना हो गया. इसके बीच में मैं, तो इतना मुझे चिंता होता है. मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ बहुत एज, तो उनकी दवाइयां कौन करेगा. मतलब इतना सब ऐसा घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है. और मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका. तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इन सब चीजों को मैं, ये है क्या और मैं कैसे डील करूं इन सब चीजों को, क्योंकि जैसे जवाब है ही नहीं हमारे पास इन सब चीजों का. और ऐसा मुझे चिंता 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 होती रहती है. डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर बोलता है स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस. अभी आप बोलो, कोरोना टाइम में इंसान स्ट्रेस नहीं लेगा तो और क्या करेगा. डांस तो नहीं कर सकती ना मैं. कितना चिंता होता है मुझे मेरे बच्चे का. क्या करूं मैडम मैं. हाँ. तो सुषमा मैडम, आपने बहुत अच्छे से अपना जो भी आप महसूस कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑथेंटिक. आपने एकदम खुल के बहुत अच्छे से हमको बताया आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो. तो अभी हम थोड़ा डिस्कशंस करेंगे. आप देखो अगर उससे आपको कुछ फायदा होता है. ठीक है. ओके. So now what सुषमा is experiencing, सुषमा ने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसी का नाम है एंजाइटी. ठीक है, उसी को बोलते हैं एंजाइटी. सो सुषमा ने जैसे बताया, सुषमा 3 तरीके से एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रही है. पहले सोमैटिक, सोमा मीन्स बॉडी. सो पहले बॉडी में जैसे उसने बताया कि मेरा छाती भारी हो रहा है, राइट, हेवीनेस इन द चेस्ट, palpitation, sweating, butterflies in the stomach, cramps. कभी कभी ये टाइम पे हमको ज़्यादा वॉशरूम भी जाना पड़ता है. So somatic, so physical symptoms she is experiencing. She also said that she is experiencing cognitive symptoms like dissociation, right? कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. She is feeling confused. She is also experiencing confusion and dissociation. कि मैं मेरे में ही नहीं हूँ, मैं कौन हूँ मुझे मालूम नहीं है, क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है. सो ये भी एंजाइटी का एक पार्ट है, डिसोसिएशन. एंड द थर्ड पार्ट इज थॉट्स. शी इज हैविंग लॉट्स ऑफ थॉट्स, थॉट्स ऑफ कोरोना, थॉट्स ऑफ her child, thoughts of how her father-in-law will manage, thoughts of पैसा कैसे आएगा. So all kinds of thoughts are coming in her mind. So 3 ये जो symptom वो महसूस कर रही है 3 एरिया में, somatic, dissociation और thoughts, ये तीनों हम जब experience करते हैं उसको बोलते हैं anxiety.
ओके, सो थोड़ा अभी इस थोड़ा तो हम हाँ सभी महसूस करते हैं इसमें से। हाँ मतलब शायद किसी को सोमेटिक होता होगा, शायद किसी को सिर्फ कॉग्निटिव होता होगा, और या फिर किसी किसी को कॉन्स्टेंटली थॉट्स भी आते होंगे, डिसएसोसिएशन भी होता होगा। सो हम में से सभी कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा सभी महसूस करते होंगे, या फिर कोई मेरे जैसा सभी कुछ महसूस करता हो सकता है। यस, सो कैन एवरीवन इज रिलेटिंग टू दिस? ये सिम्टम्स को हम क्या सभी रिलेट कर पा रहे हैं? तो वी कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स एज वेल कि हाँ ये सिम्टम्स महसूस होते हैं सभी को। या या सोमैटिक हो, डिसोसिएशन हो, थॉट्स हो, कुछ ना कुछ शायद हम सभी को महसूस होता होगा। आपको महसूस होता है तो आप यस लिख सकते हैं, यू कैन राइट यस। सो बिफोर गोइंग मोर, just a second, हाँ sorry to interrupt या स्वागता मैम। ऑल्सो मैं हाँ सबसे कहना चाहूंगी, ये जब तक हाँ मैम हमको बता रहे हैं कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं या उससे कैसे डील करना है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके पर्सनल रिलेटेड हो, आपके रिलेटिव से रिलेटेड हो, फील फ्री हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाय द एंड ऑफ दिस टॉक डेफिनेटली हम उसको एड्रेस करेंगे। यस थैंक यू मैम। प्लीज, या ओके किंजल, आई स्टार्ट, आई मीन कंटिन्यू। सो मैं ना एक फनी स्टोरी से चालू करती हूँ, क्योंकि टाइम भी भारी है, टॉपिक भी भारी है, तो थोड़ा एक लाइट स्टोरी से चालू करते हैं। सो एक टाइम में ना एक गांव में एक स्कूल था, और स्कूल में कुछ बच्चे थे। अभी हमको मालूम है स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं, बदमाश, शरारती एंड ऑल दैट। सो एक दिन वॉचमैन तो किधर गया था, उनको स्कूल खाली मिला। उन्होंने क्या किया, 3 गोट्स लिए, गोट मतलब बकरी, और तीनों के माथे पे, एक के माथे पे लिखा 1, दूसरे के माथे पे लिखा 2, और तीसरे पे के माथे पे लिखा 4। ठीक है, ऐसे लिखा, और वॉचमैन आने के पहले उनको स्कूल बिल्डिंग के अंदर छोड़ दिया। राइट, सो नेक्स्ट डे जब स्कूल खुला, डेफिनेटली द स्कूल वाज इन अ मेस। राइट, सब कुछ उधर पुथर, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चबा गए, इधर गंदा किया है, उधर गंदा किया है। सो एकदम सब लोग परेशान हो गए। जो स्टाफ थे सब ऐसा पकड़ पकड़ के पहले 1 नंबर को लिया, उसको बाहर किया, 2 नंबर को लिया, बाहर किया, फिर 4 नंबर को लिया और बाहर किया। प्रिंसिपल ने बताया कि अरे तो 1, 2 और 4 मिला, तो 3 नंबर किधर है, 3 नंबर अंदर ही होगा। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर 3 नंबर नहीं मिला। अभी 3 नंबर क्यों नहीं मिला, क्योंकि 3 नंबर है ही नहीं। राइट, पर पूरा स्कूल ये खौफ में अभी भी जी रहा है कब 3 नंबर आए। ओके, नाउ दिस इज एंजाइटी। इट इज नॉट देयर इन हियर एंड नाउ। अभी में, अब आज में, अभी में, यहाँ पे नहीं है, पर आ सकता है। ओके, सो एंजाइटी इज ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर। जब हमारे फ्यूचर सर्टेन नहीं रहता है और हमको लगता है हमारा फ्यूचर में कुछ बुरा होगा, देन वी एक्सपीरियंस एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी हम माइंड में भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम बॉडी में भी एक्सपीरियंस करते हैं। एंजाइटी हमको क्या बताता है कि बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। हम कितना भी बोलते हैं कि नहीं इतना बुरा नहीं होगा, फिर भी माइंड बोलता है हुआ तो। सो ये हम जो एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, उसके पीछे है ये थॉट, हुआ तो। या सोच, एक फ्यूचर बाबा बैठा रहता है माइंड में, वो बोलता है हुआ तो ऐसा कंटिन्यूअस विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और वो हमारे कोई भी कॉग्निटिव कन्वर्सेशन से नहीं समझता है। वो कितना भी उसको लॉजिक दो ना, वो उसके ऊपर एक बैठ नहीं, बट ऐसा ये कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ तो वो तो रहेगा ही, जिसका आंसर किसी के पास नहीं होता है। सो कैसे इसको हमारे माइंड से, या किंजल यू वांट टू से समथिंग, यू आर ऑन म्यूट।
नो ना? No, we ma'am. will Carry continue. on. ओके ओके। सो कैसे इसको कॉग्निटिवली कैसे बेसिक डील कर सकते हैं हम, हमारे थॉट्स को कैसे थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, राइट? ये जो हुआ तो जो ऐसे ऐसा कूद कूद के आता है थॉट्स, उसको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, पहले हम वो डिसाइड करेंगे, मतलब वो डिवाइड करके हम देखेंगे। और ये जो थॉट्स आते हैं एंजाइटी के, इसका एक बहुत बड़ा नाम है जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजेशन। कैटास्ट्रोफाइजेशन मतलब जो भी हुआ हमको लगता है बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे को एक छींक आया और मैंने देखा कि मेरे कोरोना में, और मैं फोटो होके ऊपर से लटक रही हूँ। सो दिस इज कैटास्ट्रोफाइजेशन। और ये बहुत स्पीड में होता है, ये बहुत बहुत स्पीड में होता है। कोई ऐसे स्पीड ब्रेकर नहीं है। हाँ, देयर इज नो स्पीड ब्रेकर। अभी हम डालने की कोशिश करेंगे स्पीड हाँ, ब्रेकर्स। यस। ओके, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ओके, सो हमारे माइंड में जब भी फ्यूचर की चिंता आते हैं, whenever we are thinking about the future, okay, and of course things which are not totally good, so that we can divide into three parts. Okay, first is the factors of concern. फैक्टर्स ऑफ कंसर्न में क्या होता है, जिसको मैं कुछ नहीं कर सकती। वैक्सीन कब मिलेगा? मैं रोज कोविन में बैठ सकती हूँ, बट कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम। वो फिर भी मेरा कोविन में बैठने का कुछ इंतजार हो सकता है, कुछ तो मेरे हाथ में है, बट वैक्सीन इफेक्टिव होगा या नहीं, दैट इज अ फैक्टर ऑफ कंसर्न। उसमें मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, सो दोज आर द फैक्टर्स ऑफ कंसर्न। सो फैक्टर्स ऑफ जो कंसर्न है, जिसका माइंड जितना फैक्टर्स ऑफ कंसर्न में रहता है, वो उतना रिएक्टिव और उतना एंग्शियस होता है। अगर मैं पूरा दिन बैठ के फैक्टर्स ऑफ कंसर्न सोचती हूँ कि अरे मुझे कोरोना हो गया तो, अरे मेरे बच्चों को जॉब नहीं मिला तो, अरे मुझे वैक्सीन मेरे पे काम नहीं किया तो, सो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ कंसर्न। If I am constantly thinking about, मेरा पूरा फोकस फैक्टर्स ऑफ कंसर्न में है, तो मैं कुछ भी करूं, I will be anxious, I will be reactive. Okay. Now, और कैसे थॉट्स रहते हैं? Another set of thoughts is the circle of influence, जो पूरा मेरे हाथ में नहीं है, बट हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है कि वैक्सीन मिलने के लिए रेगुलरली आई एम चेकिंग कोविन। मेरे बच्चों को चाहिए कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, उनको जॉब्स मिले, सो वर्किंग ऑन देम, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड we can work on them, but how much they will be influenced or not is not fully in our control. So जो factor हमारे influence में है, we also have to be aware that those are factors in our influence. It is not totally under our control. ये पूरा हमारे control में नहीं है. Now we come to the center. That is the factors in our control. अभी जो भी इंसान सक्सेसफुल है, जो भी इंसान हमको लगता है अरे तू ऐसे कितना काम रहता है, तू कितना कंपोज रहता है, तू कितना सॉर्टेड है, इट इज दोज पीपल जिनका पूरा एनर्जी सर्कल ऑफ कंट्रोल में रहता है। उसका मतलब है कि एक सिचुएशन में जो फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में है, मैं पूरा फोकस, मेरा पूरा एनर्जी उधर ही देती हूँ। I am not putting my energy in the circle of concern. I am putting minimum energy in the circle of influence. I am putting all the energy available in the circle of control. जो सब फैक्टर्स मेरे हाथ में हैं, जैसे इधर eating healthy, working on my immunity, going out less, use of mask, use of sanitizer, all these things, these are definitely under my control. Doing relaxation exercises, working on myself, these are factors under my control.
So to deal with thoughts, to deal with these anxious thoughts with the mind strategies, the moment a thought comes, we have to see, is it, this thought is of the circle of concern, सर्कल ऑफ कंसर्न है तो पुश इट अवे, उसका सोच के हम कुछ भी नहीं कर सकते. इट इज ओनली गोइंग टू मेक अस एंशियस, इट इज ओनली गोइंग टू मेक अस एंशियस. यस सुश. सर्कल ऑफ कंसर्न मीन्स चिंता का ऑर्बिट, राइट. ओके. हाँ, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स हम कहाँ कुछ कर सकते हैं उसके लिए एक्शन, जहां पे हमको कोलैबोरेशन भी चाहिए और हम भी कुछ कर सकते हैं. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है तो हमको देखना है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हमारे हाथ में जितना है हम उतना कर रहे हैं या नहीं. ओके. एंड देन वी हैव टू सी इफ द व्हाट वी आर थिंकिंग इज इट इन आवर कंट्रोल. If it is in your control, if it is something in your control, put 100% in that. उसमें जब हम 100% देते हैं तो हम कुछ एक्ट आउट भी करते हैं, हम कुछ एक्टिविटी भी करते हैं. सबसे एंजाइटी सबसे खतरनाक कब होता है? व्हेन वी फील हेल्पलेस विद दैट एंजाइटी. ओके, एंजाइटी फिर भी बर्दाश्त हो जाता है इफ वी कैन डू समथिंग. ओके, बट इफ आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑल्सो, साथ में हेल्पलेसनेस आ जाता है. एंड हेल्पलेसनेस इज अ वेरी डिफिकल्ट फीलिंग, राइट? सो यू वांट टू से समथिंग? या इसमें है ना, जैसे आप बोल रहे हो ना कि when you are using the body, जब हम हमारे शरीर को यूज करते हैं ना तो वो एंजाइटी मैनेजेबल हो जाती है. नहीं तो एक बार ऐसे, हाँ, when the body moves, जब शरीर चलने लगता है ना उस एंजाइटी को लेके, तो एटलीस्ट वो मैनेजेबल. आई एम स्टिल से इट इज डिसफंक्शनल ओनली, बट एटलीस्ट उससे हम कुछ ना कुछ उसको मैनेज कर पाते. ग्राउंडिंग थोड़ा बहुत मिलता है इफ यू आर डूइंग समथिंग, हमारी एक्ट में कुछ है, तब वो थोड़ा मैनेजेबल लेवल पे घूम लेते हैं. हम बहुत लोग ऐसे देखो घूमते रहते चिंता लेके, बट इफ यू विल सी जो फंक्शनल है ना वो कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं उस चिंता को लेके. बट जो टोटली डिसफंक्शनल हो जाते हैं, जो हेल्पलेस मोड में आते हैं, तब वो ऐसे नीचे बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा. मतलब इट इज बियॉन्ड प्रपोर्शन, उसका प्रपोर्शन इतना ज्यादा बाहर हो जाता है ना कि वो देन द पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? सो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है. और सेकंड जो स्वागता ये जो बोल रही है ना कि जो हम कर सकते हैं वो हमको करना है, जो कंट्रोल में है, और जो नहीं कर सकते हैं वो हमको छोड़ देना है. इसका एक बहुत अच्छा गुजराती सेइंग है विच आई रियली लव इट. तकेदारी पूरी राखवी, घबराऊ जराय नहीं. टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, बट डरना नहीं है. ये बहुत अच्छा सेइंग है. मैंने कोरोना के डे 1 से ये यूज किया है कि पूरा ध्यान रखना. मैं तो पूरा ही घूम रही हूँ, ये पूरे 1 साल में मैंने जितना घूमा है कभी नहीं घूमा, बट हर बार मेरा यही था स्टेटमेंट कि पूरा प्रिकॉशंस लेना है, बट डरना बिल्कुल भी नहीं है. सो फॉर एंजाइटी ना, दिस सेंटेंस यू हैव टू क्रिएट. हमको ऐसे कोई पंच लाइन्स हमारे लिए बना के रखने हैं जो हमारे सपोर्ट में हो, मेटाफर हो, स्टोरीज हो, पंचलाइन हो, जो हमारे माइंड में रोल होती रहे. वो रोल होती रहेगी ना तो एंजाइटी सेटल्ड रहेगी. यस. हाँ स्वागता, यू कंटिन्यू. So as Sushma was talking about metaphors and proverbs, so to manage my anxiety, there is one-liner I use, that is, always never ask what will happen, always ask what I can do. क्या होगा वो सोच के मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है. So the focus is not that, the focus is what I can do. और कभी कभी ये जो थॉट रहता है ना क्या होगा, वेरी ऑफन इट इज लाइक द 3 नंबर गोट. सुषमा एक स्टोरी बोलती है उसकी एक फ्रेंड की. सुषमा, वुड यू शेयर दैट स्टोरी? आई थिंक दिस पार्ट व्हिच वी आर टॉकिंग, दिस स्टोरी विल मेक सेंस. Which story? That friend of yours who got married and came back very thin and stressed. या मेरी एक सहेली थी, वो है ना उसकी शादी के बाद शी वाज मैरिड इन अनदर सिटी. तो वहां से जब वो पहली बार मैके वापस आई तो शी वाज ऐसे पतली और ऐसी सुकड़ी कंकड़ी होके आई थी.
तो पूछा दूसरी फ्रेंड ने कि भाई ये इतनी पतली कैसे हो गई है, मतलब ससुराल वाले तकलीफ दे रहे, खाना वाना नहीं दे रहे? तो बोली नहीं नहीं सब कुछ दे रहे हैं। तो बोली वहां कोई तुझे मार रहा है, कोई अब्यूज है? तो बोली नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। तो वो बोली तो फिर क्या है? तो पहले तो वो बता ही नहीं रही थी, बहुत झिझक के बाद शी वाज क्वाइट हेजिटेटिंग, ये बात बोलूं कैसे। तो उसके बाद उसने ये बताया कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे तरीके से करते हैं, बट है ना वो मुझे ऐसा बोलते हैं कर ले जल्दी नहीं तो वो बोली एग्जाम्पल दे, मैं नहीं समझी। तो वो बोलते हैं कि तू जल्दी जल्दी चाय बना नहीं तो वो जल्दी जल्दी चाय बनाने लग जाती है। तू जल्दी जल्दी खाना बना नहीं तो वो जल्दी जल्दी खाना बनाने लग जाती है। तो वो नहीं तो से इतनी डरती है कि बोले मैं कांस्टेंट डर लग जाता है कि नहीं तो क्या हो जाएगा पता नहीं। तो दूसरी फ्रेंड थी, उसने बोला कि एक बार तू पूछ तो सही ये नहीं तो का क्या मतलब है। तो शी सेड ये पूछा क्या? तो उसने बोला नहीं मैंने कभी पूछा नहीं, मुझे हमेशा डर लगे कि कर लूं नहीं तो कुछ हो ही जाएगा। तो शी सेड कि ओके इससे पहले तो इस बार जाएगी ना तो पूछ पहले। तो उसके हस्बैंड ने तो एज यूजुअल बोला जल्दी जल्दी चाय बना नहीं तो वो पूछती है कि नहीं तो क्या? तो बोले कुछ नहीं तो मैं बना लूंगा। So it was that simple. It was that simple. But हम कभी वो नहीं तो के परे जाते ही नहीं है। मतलब our focus is totally in the circle of concern. हम circle of control में जाते ही नहीं है कि भाई क्या होगा जो मेरा कंट्रोल के बाहर है। हाँ। Then finally we see ऐसा कुछ भी नहीं था। So it is very important कि हम लोग anxiety में क्या होता है, the moment you ask a person anxiety में क्या होता है, physical symptoms के साथ साथ they will say overthinking होता है। So whenever you have this overthinking, divide the thoughts into these 3 columns. Okay, is it in your control? Is it under your influence? Or is it totally in the circle of concern? If it is in the circle of concern, कि ये इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, I cannot do anything about it, right? So you have to ignore. And there will always be factors in the circle of concern. Otherwise, we will not be human beings. हम भगवान हो जाएंगे। फ्यूचर में मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, मुझे मालूम है, तो मैं भगवान हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, right? So that we always have to keep in mind. Okay, that circle of concern, everybody has some areas of concern. सब कुछ किसी के हाथ में नहीं है। अगर मुझे मालूम है मेरे फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं है, I will not be able to get up in the morning. सुबह मेरी आंख ही नहीं खुलेगी, because I'm like क्यों उठूं मैं, right? So whatever is in the circle of concern, we have to learn to totally ignore it. Okay. Second is influence. इन्फ्लुएंस में हमारा पार्ट हम पूरा कर सकते हैं और अगला जो है जितना हो सके उसको मोटिवेट करना है, उससे बॉन्ड करना है, we can give it our try. And our 100% effort has to be there in the circle of concern. Okay. Now, when I say 100% effort, we also have to understand that we are all fallible human beings. राइट अभी मुझे 100% एफर्ट, मैं विल आस्क सुषमा तो 100% एफर्ट में मुझे क्या करना चाहिए? सुषमा विल टेल मी जंक फूड छोड़ देना चाहिए, बट वो मेरा प्रकृति नहीं है। मैं जंक फूड छोड़ दूंगी तो 1 हफ्ते के बाद मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अंडर आवर कंट्रोल मीन्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। ओके, it's not that I have to be somebody else and do it. So मेरे हाथ में जितना है, मेरे को जितना possible है, my entire effort has to be there in the circle of control. So मेरे हाथ में जितना है, all the effort has to be there, keeping in mind that it is we all are fallible human beings. हम इंसान हैं और सबसे गलतियां होती हैं। Yeah, you want to say something, Sosh? You mean to say कि सर्कल ऑफ कंट्रोल मतलब खुद को कंट्रोल करना नहीं है, जो कर सकते हैं वो करना है। Exactly. We don't have to judge us so much. Yes. We don't have to, and we have to understand कि मेरे प्रकृति में मैं इतना ही कर सकती हूँ। Okay, so I am doing my best. Correct. वो गुरु गौर गोपाल दास का एक मुझे सेइंग बहुत अच्छा लगता है कि इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट देन व्हाई वरी, एंड इफ यू कांट डू समथिंग अबाउट इट देन व्हाई वरी।
एग्जैक्टली। सो और एंजाइटी का ऑपोजिट स्टेट ऑफ माइंड होता है करेज। So whatever makes you courageous, tune into that. It might be Swami Vivekanand, it might be Sachin Tendulkar, it might be your mom, it might be your dad, it might be a teacher. So just think कि ये situation में वो इंसान क्या करता? What would have that? What if you said that मुझे बहुत डर लग रहा है? वो इंसान आपको क्या बोलता? If you think of that, you will see that you are having less fear. You are having more courage. And also, here, faith is very important. Whoever you have faith upon, it can be yourself. शायद खुद के ऊपर भरोसा है, नहीं है तो भगवान हो, कोई गुरु हो, जो भी है. Faith also helps us to deal with anxiety. So at a cognitive level, thought level पे हम anxiety से ऐसे deal कर सकते हैं. So Sushma ma'am, did you get any answer from here? Yes, absolutely clear. Absolutely clear. Okay. But you know ma'am, what happens? I'm so happy कि आपको ये clear हो गया. पर कोई ऐसे होते हैं ना, वो लोग thought procedures इतना apply कर तो लेते हैं, पर फिर भी उनका body में anxiety बोलता ही रहता है. So आप उनके लिए कुछ suggestion दे सकते हैं? हाँ, सो नाउ अभी हम ये दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं कि थॉट लेवल और थिंकिंग लेवल पे हमने कर लिया, तो अब बॉडी लेवल पे एंजाइटी को कैसे अटेंड करेंगे? क्योंकि जहां तक देखा गया है ना, एंजाइटी बॉडी में एक बार आ गई ना, तो थॉट पे काम हमारी ताकत कम हो जाती है करने की. नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, बट एक बार जब वो बॉडी में एंटर कर जाती है ना एंजाइटी, फिर हमारा एकदम एजिटेशन बहुत बढ़ जाता है. तो जैसे मैंने पहले बोला कि जो भी काम कर रहे हो ना, जो हमारे ताकत में है वो काम वो करना है. सेकंड ये है कि जो भी आपका प्रोफेशन है, मतलब नॉर्मल लाइफ है ना, जो भी वो जीते रहो. वहां मुझे एक दिन एंजाइटी हुई, मैं बैठ गई, तो जैसे ही आप बैठोगे चीजें और डिफिकल्ट होती जाएगी एंजाइटी के साथ. यू कीप ऑन मूविंग. आई ऑलवेज से कि जो एंजाइटी वाला आता है ना, कि आप क्या काम कर रहे हो, जो प्रोफेशन है उसको मत छोड़ो. एटलीस्ट यू विल हैव अ सर्टेनिटी इन अ डे. अनसर्टेनिटी बॉडी में आ चुकी है, बट एटलीस्ट देयर इज सर्टेनिटी इन सराउंडिंग. तो जो काम कर रहे हो डेली रूटीन को मत छोड़ो वहां. यू विल सी दैट कि दैट विल ऑल्सो हेल्प. अपना जो डेली का रूटीन है उसको कंटिन्यू ही रखो. अब इसके बाद जब एंजाइटी बॉडी में आ जाती है, एक बार बॉडी में आ गई है, तो सिर्फ माइंड से वो कंट्रोल में नहीं आएगी. तो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू कि जब बॉडी में एंजाइटी आती है तो उसको किस तरीके से हमको डील करना है. ओके, सो आई वॉन्ट एवरीवन टू टेक पेपर एंड पेन एंड राइट डाउन, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा खुद. तो आपको लिखना है जो मैं बोल रही हूँ. एंजाइटी बॉडी में कैसे एक्सपीरियंस होती है? तो जैसे मैंने बोला कि मेरी सांसें भारी हो गई, सो एंजाइटी विल फर्स्ट अफेक्ट द ब्रेथ. आपकी सांसों को वो सबसे पहले अफेक्ट करेगा. दूसरा है आपका ये छाती का रीजन. यहाँ जैसे आपकी हार्ट बीट, पाल्पिटेशन, धप-धप, हैवी फील लगना, आग लगनी, बैठ जाना. हमने सभी से सुना है, ऐसा लग रहा है किसी ने छाती पे पहाड़ रख दिया. ऐसा लगता है सीने में जैसे आग लग रही है. ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ जैसे सब खत्म हो गया. फ्रीजिंग, नंबिंग, जो भी एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं. और एंजाइटी का सबसे ज्यादा बड़ा लोकेशन पेट है. पेट के आजू बाजू या पेट में हमको सबसे ज्यादा एंजाइटी फील होती है, क्योंकि वो हमारा बर्थ है ना, नेवल से हमारा जन्म होता है. सो नेवल चक्रा इज द मैक्सिमम पावरफुल. कभी भी आप देखो, डर लगेगा ना सबसे पहले, तो आपके ब्रेन को कुछ नहीं होगा, आपके पेट में ऐसा होगा करके, ऐसे लगेगा कुछ खींच गया. एक्सीडेंट होता है तो कोई लोग देखते हैं तो सबसे पहले उनके पेट में कुछ होता है. सो एंजाइटी इज नेवर एक्सपीरियंस्ड हियर. ये तो सपोर्ट के लिए, देन इट कट्स द कनेक्शन और बेहोश हो जाते हैं लोग, क्योंकि इट इज ओवरवेलमिंग. बट सबसे पहले वो एक्सपीरियंस अराउंड द स्टमक रीजन होगा. सो अंडरस्टैंड दैट कि उसका लोकेशन क्या है. आपको अपनी एंजाइटी का लोकेशन देखना पड़ेगा. जैसे मुझे मेरा स्पेसिफिकली बताऊं तो एंजाइटी का लोकेशन है मेरे जो नाक से अंदर जो सांस जाती है ना, दैट इज माय लोकेशन ऑफ माय एंजाइटी. मुझे अंदर है ना गरम कभी कभी लगता है, कभी कभी मुझे नॉस्ट्रिल्स में ठंडा लगता है. सो यू हैव टू फाइंड आउट. किसी के शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं. सो हर एक को अपनी एंजाइटी का लोकेशन देखना है.
What is the location of your anxiety? This is the first thing. ऐसे कोई कोई ना आपको ऐसे बोलेगा, जिसका सर में होगा ना वो वैसे बोलेगा, सर ऐसे लग रहा है जैसे फटा जा रहा है, या ऐसे लग रहा है कोई सुइयां चुभ हो रहा है, या ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने सर पे पत्थर रख दिया हो. यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम लोकेशन है ना, पता ही चल जाएगा. अगर सपोज मैं स्वागता का कर रही हूँ तो मुझे स्वागता द वे शी इज एंग्जाइटी में ना बॉडी बहुत यूज होता है, तो शी विल डिपिक्ट, ऐसा लग रहा है ना कि बस मेरे ऐसे सीने में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है. सो आई नो व्हाट इज द मूवमेंट ऑल्सो. तो लोकेशन है ना मोस्ट ऑफ द टाइम अगला बता भी देगा, और खुद के लिए बैठोगे तो ये जो मैं बता रही हूँ बॉडी में एंग्जाइटी आ जाता है. यू कैन डू इट फॉर योर ओन सेल्फ एज वेल एज फॉर योर लव्ड वंस. आप किसी और के लिए भी ये कर सकते हो. सो फर्स्ट इज फाइंड आउट द लोकेशन. सेकेंड इज वेट. भारी लगना, हल्का लगना. कोई बोलता है ऐसा दिल जैसे खाली हो गया, ऐसे वैक्यूम क्रिएट हो गया. सो देर इज अ वेट. कोई बोलता है मेरा दिल भारी हो गया, ऐसे लग रहा है कोई मुझे नीचे पुल कर रहा है, तो वेट है उधर. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वेट. लोकेशन, देन सेकंड इज वेट. थर्ड इज टेम्परेचर. अभी जैसे सीने में आग लग रही है तो इट इज अ हॉट टेम्परेचर, या फिर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है, सो दैट इज अ कोल्डनेस. सो देर इज अ टेम्परेचर. नाउ फोर्थ इज स्पिन और मूवमेंट. स्पिन मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसे कोई सर पे खीले भोंक रहा है, सो देर इज अ स्किल. मुझे पेट में बटरफ्लाई घूम रहे हैं, सो देर इज अ मूवमेंट. सो इज देयर एनी, इधर देर इज अ स्पिन और मूवमेंट. कुछ मूवमेंट है वो, जैसे मुझे अभी किसी का मैं कर रही थी तो उन्होंने ऐसे लग रहा कि जैसे पेट में ऐसे ऐसे धब्बे 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 दिख रहे हैं मुझे. सो उसके उनको ऐसे धब्बे 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 ऐसे गोल गोल घूमते हुए दिख रहे थे. सो वट एवर इज द मूवमेंट और अ स्पिन, वो ढूंढना है. उसके बाद है साइज. ऐसा बड़ा है, छोटा है, जैसे किसी ने सीने पे ऐसा लगता है किसी ने भारी पत्थर रख दिया. सो आई अंडरस्टैंड कि ओके भारी पत्थर है और बड़ा है. सो पहाड़ आया है तो पहाड़ इज डेफिनेटली अ बिग इन साइज. ऐसा लग रहा है पेट में बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई इज इट्स स्मॉल इन साइज. सो साइज भी आपको पता चल जाएगा. एंड लास्ट इज कलर. अभी मैं किसी का कर रही थी, जो जिस लड़की का मैं बता रही हूँ, तो शी सेड मुझे पेट में ऐसे काले काले धब्बे भी दिख रहे हैं. सो समटाइम्स देर इज अ कलर ऑल्सो. हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसे लाल लाल, कभी किसी को छाती में लगता है कि सीने में जलन दिख रही है तो उसमें येलो और रेड फ्लेम्स है. तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस 5 to 6 थिंग्स. अभी जरूरी नहीं है कि सबका सब होगा, ये जरूरी नहीं है. कोई भी 3 या 4 चीजें भी हो सकती है. करेक्ट. तो जो 3 या 4 चीजें हम महसूस कर रहे हैं ना, तो इसके ये न्यूरल पाथवेज बने हुए हैं. तो व्हाट वी से ना कि जैसे ही चिंता होती है ये सब शुरू हो जाता है. देन इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. आपको ऐसा नहीं देखना पड़ता अच्छा कलर आया क्या, अच्छा साइज आया क्या, शेप आया क्या. इट इज ऑल ऑटोमेटिक. और जैसे मैंने पहले भी बोला कि इट इज इन अ वेरी मच इन स्पीड. तो हम कुछ समझे उसके पहले तो ये सब सिम्टम्स आपकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं. तो भी उसके ऑलरेडी न्यूअर पाथवेज बने हुए हैं. सपोज मेरा स्वागता के साथ नफरत है, मैं उसको देखूंगी और मेरे को ऐसा मेरा सिस्टम ही चलना शुरू हो जाएगा. उसने कुछ किया भी नहीं है. तो एक चिंता आई, मैं किसी के साथ एक कर रही थी प्रोसेस, तो उन्होंने, उनके हस्बैंड काफी बीमार रहते थे, तो उनको बार बार एम्बुलेंस लेने आती थी और हॉस्पिटलाइजेशन होता था. तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे ही मैं सायरन सुनती हूँ ना, मेरे पेट में कुछ होने लगता है. सो देर इज नो एंटीसीडेंट, कोई तभी इवेंट नहीं है, बट जैसे ही वो सायरन के साथ एसोसिएशन है वो सिम्टम शुरू हो जाते हैं. क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि उसके न्यूरल पाथवेज ऑलरेडी बन गए हैं. जब सच में उनके हस्बैंड को होता होगा, डेफिनेटली वाइफ है वरी करती होगी, तो वहां इमीडिएटली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. तो विदाउट एनी ट्रिगर भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. सो यहाँ ये समझ लेना है कि आपके जैसे ही न्यूरल पाथवेज बन गए हैं, जैसे ही आपके न्यूरल पाथवेज बन गए हैं, उस न्यूरल पाथवेज को आपको ब्रेक करना है. जैसे स्वागता ने बोला कि हम स्पीड ब्रेकर्स लगा रहे हैं, अब हम अपनी न्यूरल पाथवेज के स्पीड ब्रेकर्स लगाएंगे. तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, टंग ट्विस्ट करना है, टंग को लॉक करना है. मैंने टंग को नीचे रखा ना तो मेरा टंग लॉक हो जाएगा. आई विल नॉट बी एबल टू थिंक. इफ आई हैव टू थिंक, आई नीड अ लैंग्वेज. मुझे बोलना है कि अरे कोरोना का क्या होगा, तो आई नीड अ लैंग्वेज. थॉट्स के लिए भी नीड अ लैंग्वेज. तो जैसे ही मैंने टंग ट्विस्ट कर दिया,
और थोड़ा पेनफुली करना है, तो हमारा ध्यान उस पेन की तरफ जाएगा, सो ऑटोमेटिकली थॉट स्टॉप हो जाएंगे। वंस द थॉट्स आर स्टॉप्ड, ऑब्जर्व ये 5 से 6 चीजें जो हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करो, हर एक के लिए अलग अलग होगा। सिट विथ योर सेल्फ एंड फाइंड आउट अपना या किसी और का। वंस यू गॉट दैट, न्यूरल पाथवेज को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, एग्जैक्टली उल्टा करना है, तभी न्यूरल पाथवेज ब्रेक होंगे। आप रोड पे जा रहे हो तो वो लोग कैसे करते हैं, वो जो है उसके उस पर बम्पर लगाते हैं। स्पीड ब्रेकर कैसे होता है, बम्पर होता है, तो उसकी स्पीड को वो कट करता है। तो हमको क्या करना है, जो न्यूरल पाथवेज बने हुए हैं उसकी स्पीड को कट करना है बाय डूइंग द ऑपोजिट ऑफ इट। सो सपोज मुझे सीने में गर्म लग रहा है ना, तो मैं माइंड की आई से इमेजिन करूंगी कि मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ। ये माइंड से करना है, आपको सच में ठंडे पानी से नहीं नहाना है, बट इन योर माइंड यू। और माइंड में सच बोलू ना, हम जो माइंड से करते हैं वो रियल में बिलीव हो जाएगा। इफ यू वॉन्ट आई कैन गिव दैट एक्सपीरियंस टू यू राइट नाउ। क्या हम ये एक्सपीरियंस करेंगे? क्योंकि नहीं तो सवाल ही आता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा मैं ठंडा पानी बोलूंगी तो माइंड मान जाएगा क्या? राइट अवे आई विल गिव इट दैट एक्सपीरियंस टू यू। अभी आप सामने किसको देख रहे हो स्क्रीन पे? मुझे, स्वागता और किंजल को आप लोग देख रहे हो। लेकिन इफ आई से रिमेंबर योर चाइल्ड्स फेस, दिखेगा आपको अपना चाइल्ड का फेस, उसकी स्माइल, उसका साउंड, और उसके साथ आपके सेंसेशन चेंज हो जाएंगे। मैं बोलूंगी कि याद करो उसका बर्थ, इमीडिएटली योर सेंसेशन विल चेंज और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब बच्चा तो है नहीं, उसका बर्थ तो अभी बच्चा बहुत बड़ा हो गया, बट दैट मेमोरी इज स्टोर्ड इन योर न्यूरोलॉजी। सो जैसे ही मैंने बोला आपके बॉडी के सेंसेशन चेंज हो गए, बॉडी ने मान लिया कि सच में आज बच्चा बहुत बड़ा। So I can give an example here. प्लीज प्लीज प्लीज। So I'll just say one word and उसके बाद हम 1 मिनट का उसको बस एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, पानी पूरी। Can you repeat? पानी पूरी, पानी पूरी, पानी पूरी, पानी पूरी, पानी पूरी। So I think within half a minute सभी का salivation हुआ, right? So पानी पूरी तो इधर है नहीं. So it is just that the word triggers the body. Okay. So if you do the reverse, the neurological pathways will definitely get reversed. So mind से करना है, सब क्लियर है? माइंड से ये करना है कि मैं ठंडे पानी का शॉवर ले रही हूँ, ठंडे पानी का शॉवर लेते करना है ऑपोजिट। सपोज आपको ऐसे ऐसे चुभ रहा है ना, तो उसको ऐसे ऐसे निकालो, एग्जैक्टली डू द ऑपोजिट, निकालो निकालो। अगर हथौड़ा लग रहा है तो हथौड़े को निकाल दो, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो उसको ज्वाइन करो। मतलब जो जो आपको महसूस हो रहा है उससे ऑपोजिट करना है। So what if I feel stiffness in my neck? Then move your neck. So वो वहां उसका जो स्टक एनर्जी था आपने मूव कर दिया, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। अगर छाती पे पहाड़ है, निकाल दो, सच में भी तो है नहीं, तो यहाँ रैशनल माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बौद्धिक माइंड लगाने की जरूरत नहीं। अब आप बोल रहे हो छाती पे पहाड़ है, तो सचमुच में तो नहीं है छाती पे पहाड़, तो इमेजिनेशन में ये तो निकालो भी इमेजिनेशन में। डू नॉट अप्लाई योर लॉजिकल माइंड ओवर हियर, मतलब अपनी बौद्धिक शक्ति को यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। When the problem is illogical, the solution also has to be illogical. परफेक्ट, लोहे को ही लोहा काटता है ना, ये तो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। तो एकदम इलॉजिकल ही उसको दूर करो। और दूसरी चीज है, ये स्पीड में करना है हमको। वी हैव टू यूज द स्पीड, नहीं तो ना कॉन्शियस माइंड इंटरफियर करेगा। है ऐसा थोड़ी ना होता है ऐसा, इट हैज अ हैबिट। देखो आपके सालों से ये न्यूरल पाथवेज बने हुए, एक दिन में नहीं हुआ है, ये एक दिन में नहीं बना है ये एंजाइटी का इतना पाथवे। वो हाईवे बन चुका है, तो अभी हमको उस हाईवे को बंद करना है। तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट इन अ स्पीड। फटाफट 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 करते रहो, लंबे समय तक करो, जब तक आपको रिलीफ नहीं होता है तब तक करो, बट कीप ऑन डूइंग इट फास्ट 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 फास्ट, सो दैट योर कॉन्शियस माइंड डू नॉट इंटरफियर।
हमारा बौद्धिक माइंड इस चीज के बीच में ना, इसलिए आपको स्पीड में उसको करते रहना है। तो उल्टा करना है, स्पीड में करना है, लॉजिकल माइंड लगाना नहीं है। ये 3 चीजें बहुत क्लियरली समझना है। आप So there करते is a जाइए। question. What या about butterflies in the stomach? बटरफ्लाई है ना, तो बटरफ्लाई को एकदम जैसे देखो कि बटरफ्लाई झाड़ पे बैठ गए हैं। बटरफ्लाईज आर सेटल्ड, वो 2 पंख लगा के सेटल जाते हैं ना। मतलब through our mind's eyes, we have to see the butterflies settling down in the stomach. We don't have to see them move. We just नो, have to see them. या सी, आपके पास बटरफ्लाई की मेमोरी है, आपके पास एक बटरफ्लाई विथ विंग्स मेमोरी है, बस उस मेमोरी को देखो आप माइंड से। यस, सो आपको ये करना है। तो जैसे ही आप करते जाओगे ना, तो आपके न्यूरल पाथवेज पे ये स्पीड ब्रेकर लगते जाएंगे, स्पीड ब्रेकर लगते जाएंगे। जैसे सांसें फास्ट है, तो आपको क्या करना है, ऐसे डीप ब्रीदिंग नहीं करना है, जस्ट अलाउ इट टू ब्रीथ नॉर्मली। इसमें कुछ नहीं करना है, यू हैव टू लुक एट इट। एनर्जी का प्रिंसिपल है, जहां भी अटेंशन जाएगा वो सेटल हो जाएगी एनर्जी। तो आपको सांसों को खाली ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कैसे, जैसे फास्ट फास्ट आ रही है ना, उसको ऑब्जर्व करो। इन अ वाइल ऑटोमेटिकली इट विल सेटल डाउन, अपने आप सेटल हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपको एग्जैक्ट ऑपोजिट करोगे तो एंजाइटी के जो न्यूरल पाथवेज हैं वो बदल जाएंगे। और वंस एंजाइटी के न्यूरल पाथवेज थोड़े बॉडी सेटल डाउन हो गई, दूसरा ये है कि बॉडी को है ना हिलाना नहीं है। सी सर्टनिटी कैसे फील होगी, व्हेन वी आर ग्राउंडेड। व्हेन द सर्टनिटी इज फेल्ट इन द बॉडी, द माइंड गेट्स मैसेज। हमेशा सर्टनिटी को बॉडी में फील करना है, क्योंकि सी ईयर एंड फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, कितना भी बोलो। तो हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारी अभी की बॉडी। तो जितना हम बॉडी में सर्टन फील करेंगे बिना मूव किए, द बॉडी विल गेट द मैसेज देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट। और बॉडी को ये जो हमारे सेंट्स हैं, हमारे जो सेजेस हैं, बहुत टाइम से बोलते हैं कि सिट स्टिल सिट स्टिल सिट स्टिल, लेकिन हमको समझता नहीं है सिट स्टिल क्यों करना है। बट द मोमेंट हमने शांत बैठ के ये सब उल्टा किया बैठ के मन से, तो बॉडी को स्टिल बैठेगी, तो योर बॉडी विल गेट द मैसेज ऑफ सर्टनिटी। और अगर बॉडी में सर्टनिटी का मैसेज गया है, बॉडी और माइंड का कांस्टेंट कन्वर्सेशन चल रहा है। अभी भी मैं जब आपके पास बॉडी में करवा रही हूँ, आपका माइंड इंटरप्रेट कर रहा है, नहीं ये सही बोल रही है कि गलत बोल रही है, होगा या नहीं होगा। सो माइंड इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग द मैसेज फ्रॉम द बॉडी। So once you give the message of certainty in the body, mind will get the message. Mind अपने आप ये message ले ही लेगा। वो दोनों के वेगास नर्व्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ऐसा सेकंड में वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, हमारा गट और माइंड। तो द मोमेंट यू गिव दैट मैसेज, वो बॉडी सर्टन, और ये बहुत रियल है। सी डेंजर है, बट राइट नाउ माई बॉडी इज वेरी रियल। मैं यहाँ ग्राउंडेड बैठी हूँ, सो इट गिव्स दैट ग्राउंडिंग, वो बहुत रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा। So more and grounding का और एक टेक्निक मैं बता सकती हूँ। What is very well grounded? So that is a banyan tree. वो जो वटवृक्ष होते हैं ना, that is very well grounded. हाँ, वटवृक्ष। So you can think that you are a banyan tree. We can just identify with it. That's the way their roots are in the ground. Similarly, as if we have roots and it is in the ground. Okay. So if we identify with the banyan tree, immediately grounding हो जाता है। और ये भी होता है, you can just observe 5 things around you. Okay. And don't go to the story of it. I'll give an example. Like this is a pen. So pen का क्या है, इसका black body है, blue transparent cover है, लिखा है energy gel 0.7. Okay, so this is the visual of it. I am staying, just observe. Story और narrative में जाना मतलब I am thinking, अरे ये खत्म हो जाएगा, इसमें तो थोड़ा इंक कम है, तब मुझे उठना पड़ेगा, जब मैं उठूंगी तब क्या हो जाएगा. Okay, so when we are thinking of all that, we are going into the narrative. We don't have to go to the narrative, we just have to stay with the sense.
द सेंस इज इन द बॉडी, ओके, तो फिर फ्यूचर फ्लाइट नहीं होता है. सो ऑब्जर्विंग और बीइंग प्रेजेंट ओनली टू द साउंड्स. सो किस चीज का मतलब साउंड आ रही सराउंडिंग, है? सराउंडिंग यस, से सराउंडिंग. ग्राउंडिंग करके, ऑपोजिट करके, ग्राउंडिंग करके प्रेजेंट को ओरिएंट होना है. Yeah, yeah. So once we do these things, definitely they will be helpful. There is a question what to do for body shivering. हाँ, बॉडी शिवरिंग वाज, इसमें ना अपने आप को गले लगाना और जस्ट Hug सेटल डाउन. yourself. हग योरसेल्फ एंड सेटल डाउन. मतलब गिव द मैसेज क्योंकि आई एम सेटलिंग डाउन. धीरे 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 ना वो मैसेज देके अपने आप को सेटल करना है और And of अटेंशन course, देना है. we माइंड can, आई से, माइंड आई से अटेंशन देना है, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा. और ये जैसे बनी भी एक दिन में नहीं है, एक दिन में नहीं होगा. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू इट, बट यू विल सी इट रिड्यूसिंग. ह्यूज इंटेंसिटी में आपको, आप उसको रिड्यूस होता हुआ देखोगे. how are anxiety disorders diagnosed? So diagnosis के लिए you have to go to a clinical psychologist, like we can do a formal diagnosis. So for that वो MMPI देते हैं, that is a Minnesota Multiphasic Personality Inventory. वो आपको करना पड़ता है. So there if you have a high score in anxiety, then we tally it with DSM-5, okay, that is Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. उसके साथ हम tally करते हैं, and then you can be formally diagnosed of an anxiety disorder. Okay. So is everyone clear? Now they can ask question. Yes, Swagata? Yeah. How to deal when we have an anxiety attack? So attack मतलब यही है ना कि और कुछ है? मतलब Yeah, how if they are that can, experiencing. so I mean you mean a panic attack or when you are having too much anxiety? हाँ, So मतलब if बॉडी you, बॉडी भी अवेलेबल नहीं है, बॉडी भी अवेलेबल नहीं है. That is what she means to say that. yeah, I think so. Yeah, could So you just explain what is an anxiety attack? You mean a panic attack or too much anxiety? What is it? हाँ, क्या होता है उनको? That needs to be reported. हाँ. Okay. But all the techniques that Sushma has discussed, you can definitely do that. Have a glass of water and do that. Definitely it will be better. And then you can settle down and arrange your thoughts. और Okay. दूसरा ये है कि immediately go to the therapist before going for a medication. एटलीस्ट अगर थेरेपी से हो सकता है तो. सपोज कभी कभी क्या होता है ना, ये खुद से नहीं हो पाता है जो मैंने सिखा रही हूँ अभी, बिकॉज एज शी सेड कि अटैक आया है तो यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट, जो हम कर देंगे. हमारे पास वो सेटलिंग डाउन की टेक्निक्स है. और दूसरा क्या होता है ना, व्हेन सपोज मैं कर रही हूँ किसी पेशेंट के साथ, तो आई ऑल्सो पार्टिसिपेट. मैं उनको मिररिंग करके उनके सेंसेशन को मैं भी सेटल डाउन करने में को हेल्प करती हूँ. तो थेरेपिस्ट के पास जाके वो बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो सकता है. You need a co-regulator. Of course, if you Co-regulate. have a co-regulator, it will help. What lifestyle changes I can help to make me feel better? So here I would say follow mindfulness regularly. There are lots of mindfulness videos available, guided meditations. There is one form of therapy which is called the progressive muscle relaxation. And thanks to social media, thanks to the internet, lots of wonderful content are available. आपने regularly progressive muscle relaxation किया, it will definitely help you to manage your anxiety in a much better way, because you are releasing anxiety from your body. If Every you day regularly, absolutely. If you regularly do PMR, progressive muscle relaxation, and if you are constantly this thought organization you are doing, you are focused, you are training your mind to focus on what is in your control and letting go what is beyond your control, definitely these lifestyle changes will help you to feel better. और इनिशियली ना मे बी थेरेपी सपोर्ट लिया जा सकता है. मतलब नहीं तो फार्माकोलॉजिकल हेल्प लेने से पहले आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि थेरेपी का सपोर्ट लेके हम इससे बचा जा सकता है. क्योंकि फॉर श्योर है कि एंजाइटी को अगर डील नहीं किया गया तो इट इज अ क्लियर कट रेड कारपेट इन्विटेशन टू डिजीजेस. इट इज अ रेड कारपेट, और वहां कितना जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है. Okay, there is another question. How do I get anxiety
Yeah, I'll read it. I Wait, had a wait. question, ma'am. Yeah. Yes, Kinjal, I think she got frozen. ये फ्रोजन हो गई है. Can I ask, ma'am? Yes, please. Yes, 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 Kinjal. yes. Yeah. Okay. So if you know somebody in your family or extended family who is going through anxiety, जैसे आपने आज बताया कि ऐसे ऐसे symptoms होते हैं, तो as a family member हम उनको कैसे support कर सकते हैं? ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज करवाई ना, यू डू विद देम विद दैट. जो 6 सिम्टम्स है ना, उसमें कुछ उनको सोचने का करना ही नहीं है ना, बॉडी इमीडिएटली रिलैक्स हो जाएगी. राइट. और यार ये और फेसबुक लाइव anxiety में का रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये लाइव रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, तो पूरा दिखा दो. That will be helpful. दैट विल बी हेल्पफुल. क्योंकि कोई ना कोई सिम्टम से वो खुद को right, अपने आप रिलेट करेंगे. सो वी right, विल right, मेक right. दिस और वीडियो anxiety का ऐसा कुछ है, अवेलेबल. sorry to interrupt, ma'am. हाँ, तो ये जो है ना, ये वीडियो है ना, हम अक्रॉस सबको भेज सकते हैं, सो दैट इट विल बी हेल्प्ड. दैट इज द मिनिमम वी कैन डू फॉर अदर्स. या परफेक्ट. और एंजाइटी का ऐसा है कि ये सिर्फ बड़ों को ही होती है या ऐसा कुछ एज क्राइटेरिया है एंजाइटी का? Children also experience anxiety, definitely. So बचपन से ही हमको gravitational anxiety, stranger anxiety, from birth we have anxiety. सेपरेशन एंजाइटी, बहुत सारी एंजाइटीज हैं. So if we have the need for security and safety, So we will ओवरऑल also एक have स्टिग्मा देखा anxiety. जाता है कि जिसको एंजाइटी है वो शायद मेंटली वीक है. ऐसा है कि मेंटली वीक लोगों को ही एंजाइटी फील होता है. दैट्स द होल स्टिग्मा इन द सोसाइटी. या जब मुझे एंजाइटी थी ना, लोग मेरे ऊपर बहुत हंसते थे. जब मुझे पता नहीं था ये वर्क करना, तब मेरे ऊपर लोग बहुत हंसते थे. तो देयर इज अ स्टिग्मा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. बट फिर क्या होता है ना कि फिर एंजाइटी के लिए नहीं जाएंगे और फिर डॉक्टरों के पास अब देखो कतारें लगी है. यू सी ऑल द डॉक्टर्स सेंटर्स सारे भरे हुए हैं. सो वी हैव टू चूज. स्टिग्मा तो है ही, मेंटल हेल्थ को लेके ही स्टिग्मा. Stigma है. मतलब इट इज ओके टू से क्योंकि आई हैव अ हाई वही मेरा बीपी और डायबिटीज, बट इफ इट इज नॉट ओके टू से आई हैव अ डिप्रेशन और एंजाइटी, स्टिल देयर इज अ स्टिग्मा. एंड आई थिंक डिप्रेशन तो अलग है, बट एंजाइटी तो हर इंसान एक्सपीरियंस करता है, हर इंसान. एब्सोल्युटली. वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला था कि अगर हम एंजाइटी को डील नहीं करेंगे अभी, या ये थोड़ा ब्रेक हो रहा है उसके बाद. and you can see हो जाएगा. What can happen? We couldn't hear your question, Kinjal. Yeah. So I guess the question is, if Yeah. we don't deal with anxiety, what happens, right? Yes, I think we don't know. If we keep postponing it, कि नहीं थेरेपी नहीं लेनी है या मेडिकेशंस नहीं लेना है. Yeah. So what will happen in the future if you keep neglecting your mental health? So अगर बॉडी में मुझे कांस्टेंट पैल्पिटेशन हो रहा है, मुझे कांस्टेंट ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, you tell me what will happen. I'm experiencing everything in the body. Anxiety is experienced in the body. थॉट से फिर बॉडी में आ जाती है, सारे पैरामीटर्स हिल जाएंगे. वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ आवर वर्कशॉप ब्रेन गट एक्सेस में वो थी, एंड आई नो शी डज रेगुलर एक्सरसाइजेस, राइट अमाउंट ऑफ फूड, बट उसके सारे पैरामीटर्स हिले हुए हैं. सो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट, आपके पैरामीटर्स हिल जाएंगे. अभी आपकी इम्यूनिटी कौन से पार्ट को अटैक करेगी दैट आई कैन नॉट से, बट होस्ट सेल कंफ्यूज होके अटैक ही करेंगे ना. एंजाइटी इज व्हाट? Autoimmune disorders. All autoimmune disease. मतलब it is a red carpet invitation to diseases. आपने कारपेट बिछा दिया कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम तैयार बैठे हैं आपको लेने के लिए. So when it is not attack, या फिर हम सप्रेस भी करते हैं, हम सप्रेस भी तो करते हैं हमारे इमोशन को. नहीं कुछ नहीं हुआ, बिकॉज एज यू सेड स्टिग्मा है तो लोग हंसेंगे, तो हम पीछे हटते हैं. तो ये इन्विटेशन आता है और फिर हम आगे जाके डॉक्टर्स की दवाइयां लेते हैं. अब नाउ चॉइस इज आवर्स, चॉइस तो हमको करना है क्या. राइट. परफेक्ट. There is a question, how do I get anxiety? Is there a chance I pass this on to my kids?
सो अभी बच्चे लोग हमसे हमारे जमीन जायदाद टैलेंट इनहेरिट करते हैं, तो हमारे मेंटल स्टेट भी इनहेरिट करते हैं. सो या तो क्या कर सकते हैं? Emotions are very contagious. Yeah. So there is, I'm not getting this question answer. If you can help me, ma'am, I have no anxiety, but I accept and do next steps. But after 2 or 3 days, how can I do? I think we need a little more clarification in that. Happy to know that you are Yes, not troubled by anxiety, yes. but the आपका question क्वेश्चन is समझ not में नहीं clear. आया है. Yes. Hmm. There is a question, what are the chances of schizophrenia in children? Yes, I mean, the percentage and all you will get in Google or in PubMed, the chances, the exact statistical number, but we do see schizophrenia in children. It can be genetic, it can be environmental. We don't know. But yeah, we do see schizophrenia. 7-year-old ka schizophrenia I have seen. That is sad, but it is there. But it can be managed. Matlab, jitna I personally have seen children recovering from disorders more than what the books say. So there's hope. There's a lot of hope. Yes, The of course. earlier There you is a lot intervene. of hope. How And do one we last realize? question I had, ma'am. Yeah, yes, Kinjal. Yeah. So I had a question that how can we use supportive language for people who are experiencing anxiety? हम usually उनको बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे दिमाग फ्रीज हो गई ना. है Yeah, छोड़ दो please. भूल जाओ सब ठीक valid. How can language to support? Yes. So the most important language here is co-regulation. That I am there for you. I understand what you are going through. It is okay to feel that way. So using this kind of Yeah. language, it is okay to feel this way. I am there for you. This kind of language is helpful when a person is going through a tough time. How do we Thank you. realize that a kid is going through anxiety? Shall we just answer this question as they're not able to understand and talk about the same? So, anxiety in children, we see clinginess can be there. And mostly they will have physical symptoms. Bedwetting suddenly starts, thumb sucking suddenly starts, night terror suddenly starts. So then we know that the child is going through anxiety. So we can take help of a therapist, or we can just be assuring to the child so the child can gradually open up. And even if the child does not open up, an assuring presence can itself manage the anxiety. We have one more question, ma'am. I think what she meant was that she's facing anxiety, but she's going through some tough time and she feels disturbed after every 2 or 3 days. So what can she do? मैं नहीं समझ पाई क्वेश्चन क्या है. शी इज गोइंग थ्रू अ चैलेंज. So what she's going through some tough time and हाँ. किंजल गई. overall she manages her and she deal with it. Yeah. नहीं समझ में आया मुझे. क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दे. So it is the question. I'll just read Am out. I audible now? Now you're audible. Yeah. नाउ यू आर ऑडिबल. हाँ. Yeah. गई म्यूट. फ्रीज हो रहा है उसका. What she's trying to say is, and after every two long yaar, gadi. स्वा कैन यू रीड द क्वेश्चन. आई थिंक किंजल वो will. फ्रीज हो रही है. How can I manage tough time? I disturb after 2 or 3 days. So I think we have to understand that tough time means big emotions, right? No time is tough times if we are not having big emotions. Okay.
कुछ भी मेरे लाइफ में हो सकता है. If I am not having big emotions, these are, it is all easy. So I think somewhere down the line, it is important to sit with yourself and actually understand what in the situation is doing to you, right? So, and once we see what it is doing to us, then we can see what among all the methods which we have discussed here, which is effective for you. You can start. So Swagata, so tough time है तो tough emotion है. So you have to identify which tough emotion you are facing. Exactly. And फिर उसका डीलिंग कर सकते हैं. Yeah. Correct. So I think we have answered. Yes. Yeah. I think am I audible now? There was some network connection issues here. Not a problem. Yeah. We understand. I think we are done with the questions as well. और बहुत informative and बहुत insightful and very practical था ये live talk, which I'm sure is going to help a lot of people. क्योंकि हम सब अगर नहीं भी जानते कि इसको anxiety बोलते हैं, पर हम symptoms तो रोज ही experience करते हैं. So now we know what that mean. उसका मतलब क्या है, इसको anxiety बोलते हैं, और उसके बारे में हम कर भी क्या सकते हैं on the thought level, और दूसरा हमारे body level. So I am having a whole ऐसा bag of techniques कि अब मैं क्या करूं अगर मैं ये experience करती हूँ, या मेरे पास ऐसे parents आते हैं या बच्चा आता है, उसमें मैं कैसे ये symptoms देख सकती हूँ. So I totally love this. Totally. Thank you so much. Thank you so much. And even the questions that came up were really inquisitive कि हाँ ये whatever they were experiencing या उनके loved ones ने उन्होंने देखा रहेगा. So I would also like to thank the audience for being so patient with us, to all throughout the live. Sushma ma'am, are you there? I think Sushma का freeze हो गया लगता है मुझे. I think we are all हम ये सब सीख रहे हैं. इतना social distancing maintain करो, still keep upgrading yourself, helping people through these network issues. We all have to learn to be resilient. हम सब ये सीख रहे हैं. So we are okay with all these technical glitches. I would like to, give a big thank you to Swagata ma'am and Sushma ma'am. आपने इतना ज़्यादा time निकाला हमारे लिए, और ये इतनी sensitive, the most important topic जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है, कि जो हम experience कर रहे हैं उसका एक नाम भी है और उसके लिए कुछ किया भी जा सकता है. और अगर हमसे नहीं होता तो हम weak नहीं हैं. There are experts available जो हमको help करने के लिए ready हैं. And that उसमें कोई स्टिग्मा करने की जरूरत नहीं है. So the way in which आपने explain किया मैम, thank you so much. It was beautiful. Thank you so much, Kinjal. Thank you, Kinjal. Thanks to all the audience. Thank you so much. See you. Bye. Ma'am, we also look forward to having many such more insightful sessions आपके साथ on varied topics. Always there. जिसका I'm sure हम बहुत सब experience कर रहे हैं, पर हमको नाम नहीं पता कि इसको ये कहते हैं. So we look forward to having you again. Absolutely, Kinjal. Always there. Anytime. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Everybody have a great weekend. To end this live. Thank you for joining और हमारे साथ इतना patiently ये पूरे live को सुनने के लिए. Thank you so much. Till we meet next time again. Bye bye. Yes. Bye bye.